مشرق وسطیٰ کی زمین جو ہے وہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، جہاں جنگ کے 26ویں روز بھی دھواں ہے کہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن اس سنگین صورتحال میں اب سفارتکاری کی ایک مدھم سی روشنی دکھائی دینے لگی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اب تک جنگی لہجہ اپنائے ہوئے تھے، اب اس کا ذمہ دار اپنے ہی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو ٹھہراتے ہیں۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے جتن بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کرنا اور اعلیٰ امریکی قیادت کی پاکستان ممکنہ آمد پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کا کردار اس عالمی بحران میں ایک مرکزی ثالث کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ بالکل ایسے ہے، اور اس وقت دنیا کی نظریں اسلام آباد پر جمی ہوئی ہیں۔ ایک طرف اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے 15 نکاتی امریکی ایجنڈا تہران تک پہنچا دیا، اور دوسری طرف ایران نے بھی اپنی 6 سخت شرائط جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھ دی ہیں، جن میں امریکی اڈوں کی بندش ہے اور جنگی ہٹ جانے جیسے بڑے مطالبات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی خبردار کیا ہے کہ یہ تنازع مختصر نہیں ہوگا۔ ان تمام پیچیدہ ڈیولپمنٹس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر دفاع امور ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب۔ ان سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اہم ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ٹرمپ کے براہ راست رابطے کے بعد، پاکستان کا سفارتی وزن عالمی سطح پر کتنا بڑھ گیا ہے، اور ایک ممکنہ ثالث کے طور پر کیا اسلام آباد، تہران اور واشنگٹن کو ایک میز پر لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں مشرق وسطیٰ کی جنگ کو لے کر، اس میں پاکستان کا جو کلیدی کردار رہا ہے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، مورلی ہو، ڈپلومیٹکلی ہو، ان تمام کے اندر پاکستان نے اپنے کارڈز کو بہترین طریقے سے کھیلا ہے، اسپیشلی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر۔ جس طرح ملٹری ڈپلومیسی کی گئی یا فور دیٹ میٹر ہم نے پولیٹیکل ڈپلومیسی یا ہارڈ کور ڈپلومیسی جو کی ہے، اس کے خاطر خواہ نتائج اب دنیا کے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ڈائریکٹ بات کرنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ان کے اسٹیچر کو بھی ظاہر کرتا ہے، پرسنل اسٹیچر کو بھی، پاکستان کی ملٹری کے وقار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب اوورآل اگر دیکھا جائے تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان رپروچواں یا فور دیٹ میٹر ایک بیلنس ریلیشن شپ، یہ ویسی ایک ڈیلیکیٹ قسم کی جو ہے وہ ضرورت تھی، جیسے کہ پاکستان نے ایک ڈیلیکیٹ قسم کا ریلیشن شپ رکھا ہوا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی، تو اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر بھی تمام ممالک کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ اب پاکستان مرکز نگاہ ہے اس وقت، کیونکہ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک پروٹریکٹڈ قسم کی جنگ ہو، ایک لامتناہی قسم کی جنگ ہو، کہ جس سے دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ریسیشن کا شکار ہو جائے، کہ آلریڈی انڈیکیٹرز آنا شروع ہو چکے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی جو حالات ہیں اس وقت جس میں نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو دو لینس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، ایک آپٹیمسٹ اور ایک پیسمسٹ۔ آپٹیمسم کے حساب سے دیکھا جائے تو سیمس ٹو بی گڈ کہ جتنی جلدی یہ جنگ ختم ہو جائے، تاکہ جو ہماری طرح کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اکانومی جو ہے مزید کسی چیلنج کا شکار نہ ہو، اور لگتا بھی ہے کہ شاید ایسا ہی ہوگا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک فیس سیونگ ملے گی۔ لیکن جو اس کا پیسمسٹ لینس ہے اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے ایک اینگل یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اتنی برسوں کی ڈیکیڈز کی جو اس کی انویسٹمنٹ تھی مڈل ایسٹ کے اندر، ابراہم اکارڈز کی صورت میں ہو یا فزیکل اٹیکس کی صورت میں، وہ ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو جائے، اور ایران ایک ایسی طاقتور جو ہے ملک کے طور پر یہ قوت بن کے ابھرے مڈل ایسٹ کے اندر، کہ جس میں جو گریٹر اسرائیل کا اب تو کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات رہی نہیں ہے، تو وہ کسی طریقے سے ملٹی پلائڈ بائی 0 ہو جائے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ٹائم گین کرنے کا ایک بہانہ ہے، یا 5 دن کے لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی ہے، کیونکہ اس کو بھی لگ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کہ وہ مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں اپنے وہ نومبر میں ہونے والے اس کو جیت نہیں پائے گا، تو لہٰذا اگر اس نے جنگ میں رہے تو اس کو تب جا کے شاید دوام ملے اس کے، یہ مڈ ٹرم الیکشنز نہ ہو سکیں، ادروائز تو نوشتہ دیوار ہے کہ شاید وہ اپنے الیکشنز کو نہیں جیت پائیں گے۔ تو لہٰذا ابھی مشرق وسطیٰ تک دیگر افواج کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے اس کو ٹائم کی ضرورت ہے، تو لہٰذا 5 دن کے لحاظ سے اس نے ایک ٹائم گین کیا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ پاکستان کے لیے بھی ڈیلیکیٹڈ سچویشن ہے کہ ہم اگر اس میں ایک رول ادا کر رہے ہیں ثالثی کا، جس میں ترکی بھی شامل ہے، ایجپٹ بھی شامل ہے، اور اگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا اور دوبارہ سے اٹیک شروع ہوتے ہیں جو خاصے پریشان کن ہوتے ہیں، تو پھر پاکستان کی پوزیشن بھی تھوڑی سی انٹرنیشنل لیول پہ ڈائلیوٹ ہو سکتی ہے۔ تو ایک بڑی
जो पैराडॉक्सल काइंड ऑफ सिचुएशन है इस वक्त प्रिवेल कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल, और इस Let's सिचुएशन hope का बड़े अच्छे तरीके से आपने ब्रिगेडियर साहब अहाता किया। अगर हम देखें तो सर, फाइनेंशियल टाइम्स से ये मामला शुरू हुआ और फिर अब तमाम आलमी अखबारात जरीदों में ये रिपोर्ट हो रहा है कि अमरीकी क़यादत के बड़े नाम मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं, और अमरीकी पॉलिसी में आप तब्दीली की बड़ी वजह क्या समझते हैं? और साथ ही साथ कुछ ये भी इतलात आ रही हैं कि कुछ शायद कोई एक फरीक जो हैं उसके नुमाइंदे जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कतर जैसे बड़े ममालिक जहाँ पर माजी के अंदर बड़ी टॉक्स होती रही हैं, उसके अलावा मिस्र, ओमान और इस तरह के जो ममालिक हैं उनको छोड़कर इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया, ये कितना सिग्निफिकेंट है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की एक हैसियत जो मुस्लिम उम्मा के अंदर है उसको कोई मतलब है कि उसके दो राय उसके मुतालिक है ही कोई नहीं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है या फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल लीडरशिप या हमारी रेजिलिएंट एक कौम जो है 65% तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क के हिसाब से पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। तो लिहाजा पाकिस्तान की से भी ये तमाम ममालिक हमारी इज्जत भी करते हैं और डिफेंस पैक्ट में हमारे साथ एंटर भी होना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे साथ जो सपोर्टिंग रोल में है वो इजिप्ट है, मिस्र है और एट द सेम टाइम तुर्की है। तो लिहाजा किसी भी ऐसे फ्रीक को इसमें शामिल नहीं किया गया जो ईरान के डायरेक्ट अटैक के अंदर जो है उसने सामना किया हो, जैसे कि कतर है, फॉर दैट मैटर सऊदी अरब है या कोई भी दूसरा जैसे जॉर्डन है उनको, या बहरीन या यूएई, कोई भी ऐसा जो इसको सबूताज कर सके। तो ये तो होगी पॉजिटिव चीज। जहां तक अमेरिकन की क्या मजबूरी हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो टाइम भी गेन करना चाह रहे होंगे वन, और सेकेंडली अगर फेस सेविंग उनको चाहिए तो एक किस्म का वो पाकिस्तान के साथ मिलकर जिसकी साख है मुस्लिम उम्मा में, तो उसको सामने रखते हुए शायद उसको नेगोशिएट करना चाहते हैं, बिकॉज उनके भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनका डिमांड उन्होंने की है मशरिक वस्ता से, और मशरिक वस्ता के अंदर अब किंगडम जो है वो इतना कोई बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं रहेगी। मजीद ये कि वहाँ पर जो लोकल एक अपराइजिंग का जो खदशा है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और मुख्तलिफ एनालिस्ट इसके मुतालिक लिख भी रहे हैं कि अरब स्प्रिंग 2 हो सकता है अपनी किंगडम्स के खिलाफ जो कि अमेरिकन के साथ खड़े हुए, और उसकी वजह से उनके मुल्कों के ऊपर ईरान ने अटैक भी किए। तो लिहाजा एक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन है। एट द सेम टाइम बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, चैलेंजिंग सिचुएशन तो है। अब अगर हम ईरान की तरफ से देखें, जो मुतालिबात हैं या जो शराइत रखी गई हैं हट जाने की, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं अड्डों की बंदिश की, आपको लगता है अमेरिका ये सारी बातें मानेगा, ये शराइत मानेगा? देखिए, 15 शराइत रखी हैं अमेरिकन ने और 5 बड़ी लॉजिकल किस्म की शराइत रखी हैं ईरान ने, कि जिसमें अड्डे यहाँ से खत्म करना और उनको अपना हरमोज में टैक्स लगाने की बात, फिर डैमेज की जितना उनका अभी तक हो चुका है। वो कहते हैं कि तकरीबन $80 बिलियन का उनका नुकसान हो चुका अब तक, मतलब जब से ये आई है इनके पास इनकलाब आया था, और उसके बाद इनके एसेट्स भी फ्रीज हैं दीगर वेस्टर्न ममालिक के अंदर, उन सबको जो है अनफ्रीज करने, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स तो ईरान ने दी हैं, जो कि सैंक्शन हटाना, ये सब कुछ। लेकिन बात यह कि उनकी भी 15 अगर डिमांड्स को देखा जाए तो इंतहाई सख्त हैं। वो तो कहते हैं कि आप जितने आपके न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनको टोटल खत्म कर दें, और जितनी यूरेनियम आपके पास है वो अमेरिकन के हवाले कर दें, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको कबूल करेंगे। इसी तरह इनकी जो 5 शराइत हैं ईरान की वो भी खासी सख्त हैं। तो लिहाजा जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे तो सबसे हार्ड पोजीशन जब भी बैठते हैं अफ्रीकन, तो हार्ड पोजीशंस लेके बैठते हैं, ताकि डिस्कशंस के दौरान जो दोनों की हार्ड पोजीशंस हैं वो कुछ एक स्टेप बैक करते हुए, साइड स्टेपिंग करते हुए आप कोशिश करेंगे कि आप कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार कर सकें। अगर दोनों अफ्रीकन जो है वो नरम पोजीशन रखें, नरम शराइत रखें, तो फिर नेगोशिएशंस उस तरह से नहीं हो सकती, और अपनी आवाम को जो है वो मुतमईन करना भी दोनों ममालिक के लिए मुश्किल होगा। तो लिहाजा हार्ड शराइत मैं नहीं समझता कि वो सामने जो भी आई हैं उसमें कोई मायूसी का फैक्टर इस पर प्ले करना चाहिए, मैं नहीं समझता ऐसे, क्योंकि ममालिक ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठेंगे तमाम प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाएगा, और अगर इन कैमरा इसकी ब्रीफिंग वगैरह होती रही, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, तो लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में खासी चीजें ऐसी होंगी जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होंगी, क्योंकि दोनों ममालिक को इस वक्त अपनी आवाम को देखना होगा। बिल्कुल, अपनी आवाम को भी मुतमईन करना है, और टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो भी यूज हो रहा है। मतलब इसराइल को अगर हम देखें तो वो इस पूरे मंजरनामे में कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को किसी भी मुआहदे पर राजी कर पाएंगे, या फिर उनकी अपनी जो इक़्तिदार की बली है वो चढ़ेगी इसराइली ख्वाहिशात की वजह से?
देखिए पावर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने इक़्तिदार की बलि चढ़ा दें नेतन्याहू के लिए। अब तो नेतन्याहू जो है इवन अमेरिका के अंदर या राइटिस्ट जो इंतहा पसंद ज्यूज हैं, इवन उसमें वो पॉपुलर नहीं रहा है। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है कि वो मारा गया या जिंदा है। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से नेतन्याहू जो है वो अपने कौम के साथ हमेशा वो बढ़ के मारता वो नजर आता रहा, लेकिन अभी वो उसको वो भी नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त जो इसराइल है वो मेरे ख्याल में बैकफुट के ऊपर खुद भी चला गया, क्योंकि तल अवीव के ऊपर या हैफा के ऊपर इस तरह के अटैक्स माजी में कभी उसकी मिसाल मिलते ही नहीं है। और अब तो वहां से ज्यूज भी भाग रहे हैं और जो है वो नेतन्याहू की उतनी सेन नहीं रहेगी। तो इस वक्त मुकम्मल अमेरिका को अपनी साख की पड़ी हुई है। तो इसराइल तो बहुत पीछे चला गया मेरे ख्याल के अंदर, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें एक सोल सुपर पावर का स्टेटस था, साख थी अमेरिकन की, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के इस तरह के जज्बाती फैसले और अंडर एस्टिमेशन करना ईरान को और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना मेरे ख्याल में उसकी जड़ों में बैठ गया। तो अब मैं ये भी समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो टू पॉलिटिकल पार्टीज का एक रजीम होती थी, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स की, अब वहां पर भी मल्टी पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स हुआ करेगी। ये तमाम चीजें इस वक्त कार्ड्स के ऊपर है, लेकिन ये तमाम चीजें सही मानों में क्रिस्टल क्लियर होंगी जब अब नवंबर के अंदर वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे। तो ये तमाम चीजें इस वक्त दुनिया के सामने, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल दुनिया के सामने आने वाले वक्तों में ये सारी चीज़ें आएंगी। और अब जैसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, वी होप कि कामयाब भी हो जाएं। ब्रिगेडियर साहब, आबनाए हुर्मस की बात हो रही थी, उसके लिए जो नए कानूनी निज़ाम का ईरानी मुतालबा है वो आपको किस हद तक काबिल अमल लगता है, और क्या चीन और रूस और जापान जैसे बड़े ममालिक ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे? देखिए, अमनाए हुर्मुज़ में कोई शक नहीं, दुनिया के 20% जो है ऑयल की तरसील यहाँ से होती है, और इसके बंद होने से या इसके ऊपर सिर्फ चेक लगाने से, जैसे कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं ईरान के कि हमने बंद नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ इसके ऊपर चेक्स एक्साइज किए हैं। तो ये ईरान का बेसिकली राइट भी है कि उनके पानियों में से अगर जहाज गुजरे तो टैक्स तो सारी दुनिया देती है। हाँ, ये जरूर है कि वो टैक्स का जो लेवल है, ये टैरिफ का जो लेवल्स हैं, वो 200 ममालिक के हिसाब से कुछ कम हो और जो थोड़े से अमीर मुल्क के हिसाब से ज्यादा हो। लेकिन ईरान के पानियों के हिसाब से उसका ये एक इनहेरिटेड राइट है, जो पहले सैंक्शंस की वजह से या धमकियों की वजह से इस तरह की चीजें नहीं होती थी। यही वजह है कि ईरान जो है वो आइसोलेटेड रहा मशरिक वस्ता की जानिब से, जितने ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस वक्त उसकी जो डिमांड है वो किसी भी सॉवरन स्टेट के लिहाज से जायज है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये एनर्जी की जो यहाँ से पास थ्रू होएगी तो उसकी प्राइसेस को बढ़ाने की तरफ एक किरदार अदा कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जब ये मिल के बैठ के बात करेंगे तो वो टैरिफ उस नौयत का नहीं होगा। ऐसे ही जैसे बाबुल मंदब से या फॉर दैट मैटर स्ट्रेट ऑफ मलाका से जब जहाज गुजरते हैं तो इंडोनेशिया, सिंगापुर को और मलेशिया को पैसे देते हैं वो लोग। बिल्कुल अहमद साहब, आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं सर कि ये इनहेरिटेड राइट है ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, और किसी की भी इजारादारी इस पे कबूल नहीं की जा सकती। और एक बड़ी अच्छी ईरानी सिफारत खाने की जानिब से एक मीम भी जो है वो जारी की गई है कि अब स्टेयरिंग के अलावा हम देख रहे हैं कि साइड पे एक वो बच्चों वाला स्टेयरिंग लगाया गया। आपकी नज़र से भी वो गुजरी होगी कि जनाब यूं मिल के कंट्रोल करेंगे, चलाएगा ईरान ही, लेकिन खुश करने के लिए अमेरिका को भी साइड सीट पे, पैसेंजर सीट पे एक स्टेयरिंग दिया जाएगा डमी। अच्छा अहमद साहब, इस सारे मंजरनामे में हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर हो रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म का तवानाई बहरान पर फोकस है कि यूरोप इस जंग में अमेरिका का साथ छोड़ने पर मुकम्मल तौर पर मजबूर हो सकता है। देखिए, मेरे ख्याल में साथ ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि हमारी जंग नहीं है, लिहाजा इसके अंदर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यूके चूंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायर है अमेरिका का, तो इसलिए उसने एक आध अपनी अबदोज यहाँ पे भेजी जरूर है, लेकिन वो भी सिंबॉलिक है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर इस वक्त मौजूद है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा कोई अफवाज वो लेके नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से नेटो जो है उसने टोटली हाथ खड़े किए हैं। क्वाड जो बनाया गया था पैसिफिक के हिसाब से, एशिया पैसिफिक, उसमें जापान ने मना कर दिया, इंडिया का कोई रोल इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। तो क्वाड नेटो का जो अलायंस है वो भी खत्म हो रहा। अब तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं रशिया से अपनी गैस के लिए और तेल के लिए, एट द सेम टाइम वो ईरान से भी बात कर रहे हैं। तो जो अमेरिका का कलीदी किरदार हुआ करता था मशरिक वस्ती में प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी आउटसोर्स जो कर रखी थी ममालिक ने, वो उसका भी वहां पे डाइल्यूट हो चुका। इस वक्त अमेरिकन बड़े वाज़ेह तौर पर जो दुनिया में ममालिक को आइसोलेट करते थे वो खुद आइसोलेट हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ गलत पॉलिसीज, 1 नेतन्याहू के पीछे खड़ा होना, 2 और नंबर 3 जो डीप स्टेट है उसमें अमेरिका के अंदर जो अपने इलेक्शन जो है अपनी मर्जी के हिसाब से वो शिफ्ट करते हैं डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान,
उनका जो है मंजर आम पे जो है वो इस तरह बिल्कुल। से खुल के आ जाना जी। 3 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवर एस्टिमेट करना अपने आप को कि 4 दिन के अंदर हम ईरान को सब्जुगेट कर लेंगे और अंडर एस्टिमेट करना ईरान को कि जो है वो ये कुछ भी जो है वो बिल्कुल नहीं कर ब्रिगेडियर पाएंगे। साहब, ये सारे ऐसी पॉइंट्स आ 4 गए और ये पॉइंट्स हैं। बस इन्होंने गलती की है और वाकई इनकी कोई प्लानिंग नहीं